ثابت شدہ ہو. یہ اس کی تحقیق ضرور کر لیں اس سے پہلے کہ آپ جب دعائیں کریں. اب آئیے دعاؤں کے تعلق سے کچھ فضیلتیں، کچھ کلیریفیکیشنز، کچھ آداب اس کے سکھا دیتا ہوں کیسی دعائیں کریں اور کون سی اوقات میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے، اور خاص بات دعائیں کس کی قبول نہیں ہوتی ہے. پہلے اس عنوان کا نام یہی ہم نے رکھا تھا، دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی. پھر پہلے میں نے کہا بہت چھوٹا عنوان ہو جائے گا، ذرا وسعت لاتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار. تو انشاءاللہ یہ عنوان آئے گا. بہت سے لوگ دعا قبول نہیں ہوتی، کہاں سے ہوں گی دعائیں کی شرائط میں تو اترو، پہلے کنڈیشن تو لاگو کرو. ٹھیک ہے، تو آئیے دعا کی فضیلت کیا ہے. میں نے کچھ تو باتیں رکھی اور رکھ دیتا ہوں. دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبادت ہے، جامع ترمذی کی روایت. اسی طرح اللہ سے دعا مانگنے والا جو ہے بڑی عظمت والا عمل ہے. اللہ سے دعا مانگنا عظمت والا عمل ہے. ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں ہے. دعا کرنا بہت عظمت والا عمل ہے اور اس سے زیادہ عظمت والا اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں. اسی طرح دعا تقدیر بدل سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. کتنی افضل چیز ہے نا دعا. سب کر سکتے ہیں ہم اور سب کی قبول بھی ہوتی ہے، تو دعا ہے. اسی طرح دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تمام آفت اور بلاؤں کا حل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے. لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کرو. مطلب جو بلائیں تم پر نہیں آئی اور جو بلائیں آئی ہوئی ہیں دونوں کو ٹالنے کا حل راستہ کیا ہے؟ دعا کرو. یہ نہیں کہا کہ اے امت مسلمہ کے ولیوں تم دعا کرو، سب سے کہا نا. اگر خاص ہوتی دعا کہ اللہ گناہ گار کی نہیں سنتا تو کہتے نام کہ اے امت مسلمہ کے نیک لوگوں تم دعا کرو، اس لیے کہ جو بلا اتری ہے اور جو اترنے والی ہے وہ اسے ٹل جاتی ہے. نہیں کہا نا تم سب دعا کرو. ٹھیک ہے، ہم سب سے کہا. اسی طرح دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے، سنت طریقہ یاد رکھیے. آپ ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا کے لیے، لیکن ہاتھ بہت لمبے نہیں پھیلانا، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ نزدیک ہوتے، ملے ہوئے ہوتے. حدیث میں آتا ہے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے، اور جب آپ بہت شدت ہوتی تو ہاتھ کو دور نہیں کرتے. وہاں پر شدت کی دعا تو ہاتھ کھولتے جاتا ہو نہیں. جب آپ شدت سے دعا کرتے تو ہاتھ اوپر کی طرف جاتے. جتنی شدت ہوتی دعا ہوتی کہ بدر میں آپ نے ہاتھ اتنے اوپر کیے تھے کہ آپ کے بغل نظر آ رہے تھے، اور بارش نماز استسقاء میں آپ اتنے اوپر ہاتھ کرتے اور الٹے کرتے کہ آپ کا بغل نظر آتا. تو دعا کی شدت جتنی زیادہ ہوں گی آپ ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیں گے اللہ کی طرف، اوپر کی طرف. یہ عاجزی کی علامت ہے. اور ظاہر سی بات ہے بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مطلب کچھ مانگ رہا ہے، ایک بھکاری کی حیثیت سے کھڑا ہے. ٹھیک ہے، عاجزی کی علامت ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھلے رکھنے سے دعا نیچے گر جاتی، ایسا نہیں ہے. یہ سب اللہ کا غائب کا معاملہ ہے. لیکن ہاتھ ملانا چاہیے اور ہاتھوں کو آپ اس کی شدت کے اعتبار سے کیجیے، اور قبلے رخ ہونا بھی یہ سنت ہے، یاد رکھ. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے. اور دعا جب کرتا ہے بندہ محروم. ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا سخی ہے، بہت دینے والا ہے. اس کو ایک تو شرم بہت آتی اور بہت سخی ہے، بہت دینے والا ہے. تو لہٰذا جب بندہ اس کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے، میں کیسے نہیں دوں گا اس کو. ایک مطلب بہت حیا آتی ہے اس کو کہ کوئی اس کے در پر آئے مانگے اور وہ خالی ہاتھ چھوڑے. تو اللہ کے رسول نے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بڑا حیا دار ہے، بڑا سخی دینے والا ہے. تو اس کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ اس بندے نے جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو خالی کیسے جانے دے. تو کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا ہے آپ کی جھولی میں، یاد رکھیے. یا تو چیز کے بدلے چیز، دعا کے بدلے، اس کے بدلے آخرت میں ثواب، یا اس کے بدلے ایک مصیبت ٹالتا ہے، اس لیے کہ اس کو حیا آتی ہے آپ کو لوٹانے کے اندر. ٹھیک ہے، تو ہاتھ اٹھانا بڑا سنت ہے اور اللہ دعا. اسی طرح جو ہے دعا کے تعلق سے بات آتی ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا بھی لحاظ رکھیں. ان آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے دعا جو آپ کہتے قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم کو لگ رہا ہے اس کا ہو سکتا ہے. آئیے سنیے دعا مانگنے کے لیے جو ادب رکھنا. جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے دعا کی اے اللہ میری مغفرت کر، مجھ پر رحم کر، اور اس کے بعد چلا گیا. آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی. صحابہ نے کہا اس کی قبول نہیں کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، تعریف بڑائی بیان کیجیے اللہ کی. سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، اللہ کی حمد و ثنا. اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھو. تو دوسرے صحابی نے سن لیا، فوراً گئے، نماز پڑھی، اس کے بعد الحمد ثنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اور اس کے بعد جو ہے اپنی دعا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی قبول ہوئی. یہ ادب ہے دعا کا، یاد رکھیے. ان کو ضروری نہیں کہ آپ جلدی میں ہو، مصیبت میں ہو تو آپ سیدھے پکارے اللہ کو، لیکن جب آپ اطمینان سے دعا کر رہے ہیں تو ضرور اس ادب کا لحاظ رکھیے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اپنی حاجت اس کے بعد رکھیے، اور اس کے اندر بالخصوص اپنی مغفرت کے ساتھ شروع کیجیے. اللہ میری مغفرت، اس کے بعد میرے فلاں عمل اور فلاں عمل اور فلاں عمل. ٹھیک. اسی طرح دعا جامع ہو، کم الفاظ والی ہو اور 2 ٹوک ہو.
डायरेक्ट टू पॉइंट हो, जामे, समझते आप, कम अल्फाज वाली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबे लंबे अल्फाज पसंद नहीं की दुआ में, खूब लंबे लंबे अशार पढ़ रहे, ये पढ़ नहीं, जामे हो। जैसा कि एक शख्स जो है वो दुआ कर रहे थे और कहते अल्लाह मुझे जन्नत दे, जन्नत के सीधे हाथ पे इतने दरख्त दे, जन्नत के उल्टे हाथ पे उतने दरख्त दे, जन्नत के खेत। तो उनके वालिद ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया था ऐसी दुआओं के ताल्लुक से, ऐसी तफसीली, जामे दुआ करो जन्नत दे। अब जन्नत में सब कुछ मिल जाएगा ना, ये खामखा क्यों कर रहे हो तुम, इतने झाड़ इधर उतने झाड़ उधर, ये अल्लाह खुद दे देंगे ये सब। और जहन्नुम से पनाह मांगना है तो सिर्फ ये दुआ करो, अल्लाह जहन्नुम से पनाह दे। इतनी तफसीलात क्यों की जहन्नुम की, ये पनाह दे और वहां से पनाह दे, सिर्फ आप कर लीजिए खाली, समझ रहे हैं बात को। तो जामे हो, लंबे लंबे अल्फाज, तफसीली ना हो, जामे हो। अल्लाह जन्नत दे, जन्नत की नेमतें खुद मिल जाएंगी ना साथ में, उसको क्या आपको जरूरत बोलने की, इतने झाड़, इतनी हुरें, इतने फलां, इतने घर, इतने पैसे, जरूरत ही नहीं है ना। जन्नत मिल गई, सब कुछ आ गया, जहन्नुम से बच गए, सब कुछ हो गया। इतना क्योंकि अल्लाह जहन्नुम के वो हिस्से से नजात दे और वो हिस्से से नजात दे और वो हिस्से से, खाली आप बोल दीजिए बस, बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो जामे हो और दो टोक हो, दो टोक। ये दुआ कोई ना करे, अल्लाह तू बेहतर समझे तो दे, ये दुआ दुरुस्त नहीं। क्यों? अल्लाह पे कोई अथॉरिटी है कि जो बेहतर समझेगा और नहीं समझेगा? उसके पास तो पूरी मिल्कियत है, वो तो दे ही सकता है। आप मांगिए क्या मांगना है, आपको बोलिए अपने डोर, अल्लाह ये चीज मुझे खैर है तो दे दे, खत्म। तू चाहे तो खैर दे दे, ये कोई ऑप्शन नहीं। अल्लाह के ऊपर क्या कोई बॉस है उसका जो उसको वो करेगा कि तू चाहे तो मतलब वो किसी से पूछे? डायरेक्ट अपने दो टोक अल्फाज में कीजिए, अल्लाह ये चीज खैर हो तो दे दे, बस खत्म। दो टोक हो, मजबूत अल्फाज हो, जामे अल्फाज हो, कम अल्फाज हो और अप टू द पॉइंट हो दुआ अपनी। और ये नहीं कि अल्लाह को ऑप्शंस के साथ तू खैर तू बेहतर समझे तो दे, बल्कि आपने कहा सीधे अप टू द पॉइंट, आप कहे अल्लाह अगर खैर हो तो ये चीज मुझे दे दे, शर हो तो इससे महफूज रख, खत्म हो गया। दो टोक अल्फाज में कहे, ये ना कहे, सही बुखारी की रिवायत ये ना कहे कि जो अल्लाह तू चाहे तो, बल्कि अल्लाह के ऊपर कोई बड़ा नहीं है, उसका हाकिम नहीं है कोई, वो खुद सुनता है, लिहाजा दो टोक अल्फाज में दुआ करो। इसी तरह दुआ मांगते हुए दुआ की कबूलियत का आपको यकीन रखना होगा दिल में। जब आप शख्स से दुआ करेंगे ना, होती नहीं होती चलो कर लेंगे, लेकिन अब दुआ नहीं होती कबूल आपकी, अब नहीं होती, क्योंकि आप ऐसी बारगाह में जा रहे हैं जो इतना गनी है, जो किसी को लौटाता नहीं है, और वहां जाते वक्त फकीर ये सोचे कि मिलेगा नहीं मिलेगा, चलो मांग लेते हैं, फिर नहीं मिलता। मांगने वाले को बिल्कुल डट कर जाना चाहिए कि इस दरबार से कोई वापस नहीं जाता। यहां तो भर दे झोली किस किस से चालू है, और वो नहीं भरेगा, है ना। लौट कर जाऊंगा ना, मैं खाली, मैं अल्फाज नहीं दोहराना चाहता हूं, है ना, इसलिए कि वो अल्फाज दुरुस्त नहीं, शिरकी अल्फाज है, किसी नबी और वली से मांग नहीं सकते हम। तो जब वो लौटा सकते झोली भर कर, तो रब किसको कैसे वो करेंगे, वो तो देने ही वाला है। तो आप यकीन करें कि दुआ कबूल होने वाली मेरी, वो तीन शक्लों में, वो याद रखें हमेशा। और फिर दो टोक अल्फाज में कीजिए, यकीन के साथ कीजिए अल्लाह कबूल करेगा। और दुआ पूरी तवज्जो और यकसुई से कीजिए, दुआ में खुशू हो, जैसा नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ज़िक्र अस्कार, तिलावत कुरान में खुशू, तो उसी तरह खुशू हो। ये नहीं कि आप, बहुत से लोग दुआ करते हैं हाथ चालू है बस, कुछ तो भी चल रहा है बस, मतलब कोई उनको दुआ में खुशू नहीं, बस और यहाँ आमीन चल रहा है मामला। खुशू के साथ, आजीजी, इनकिसारी के साथ, यकसुई के साथ। ये जामे तिरमिज़ी की रिवायत आपने फरमाया, अल्लाह ताला से कबूलियत के मुकम्मिल यकीन के साथ दुआ करो, और याद रखो अल्लाह ताला गाफिल और बेध्यान दिल की दुआ नहीं सुनता और कबूल नहीं करता। गाफिल बेध्यान दिल बस कर रहे, अल्लाह बस मेरे वालिदैन को फलां कर दे, नहीं गाफिल है, आप इधर देख रहे, उधर देख रहे, ये काम कैसा चल रहा, वो कैसा हो रहा, मस्जिद में क्या क्या हो रहा, घर में क्या क्या हो रहा है ना, तो फिर दुआ कबूल नहीं होती, याद रखिए। इसी तरह दुआ के अदब में ये अदब भी है, दुआ मांगने से कबल अपने गुनाहों का इतराफ़ कीजिए अल्लाह के सामने। ये हाकिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जब भी तुम अल्लाह से दुआ मांगो तो अपने गुनाहों का पहले इकरार करो, अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मुझसे गुनाह और खता हुए, लेकिन तू मेरा रब है, इस गुनाह और खताओं के बाद भी मुझे यकीन है तू मेरी दुआ सुनेगा। तो अपनी गुनाहों का इतराफ़ कीजिए और फिर अपनी हाजत मसाइल उसके सामने रखें, ठीक है। तो गुनाहों का इतराफ़ ये ज़रूरी है, ठीक। इसी तरह खास दुआओं के लिए आप 3-3 बार भी दोहरा सकते हैं, खास दुआओं के लिए, स्पेशल जो आपकी दुआएं हों कुछ, तो आप 3 बार दोहराइए, उसकी सुन्नत है, ये उसका अदब भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इब्न माजा की रिवायत है, आपने जन्नत तलब की और जहन्नुम से पनाह मांगा, 3 बार कहा अल्लाहुम्मा सल्लि जन्नत व नऊज़ु बिका मिनन नार, 3 बार कहा, कि तो बहुत अहम दुआ है ना, जन्नत पाने की, जहन्नुम से बचने की। तो इससे पता चला आप ऐसी दुआओं को जो बड़ी अहमियत की है 3 बार दोहराना, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर, ये इंपॉर्टेंस के लिए, और ये सुन्नत है। आप जब भी कोई अहम दुआ करते 3 मरतबा अल्फाज के, जैसे उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को दुआ दी थी 3 बार की दी थी एक साथ, इंपॉर्टेंट था ना, इसलिए कि जंग तबुक में माल ला के दिया था जब कोई दे नहीं रहा था, ठीक है, तो 3 बार। इसी तरह ये इब्न माजा की रिवायत, इसी तरह जो है
जामे तिरमिज़ी की रिवायत आप फरमाया और कहा किसी दूसरे के लिए दुआ मांगने वाले को पहले अपने लिए दुआ करनी चाहिए, फिर दूसरे के लिए मांगना चाहिए। अगर कोई आपसे कहा भाई मेरे लिए दुआ कीजिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया पहले अपने लिए मांग और फिर उसके लिए वो चीज़ मांग, इसलिए कि पहला मोहताज तो वही है जो मांग रहा है और फिर वो है जिसने मांगने का कहा। तो जब भी कोई आपसे दुआ कहे तो ज़रूर अपने लिए मांगिए पहले और फिर उस सामने वाले के लिए भी दुआ कीजिए। इसी तरह जो ये अबू दाऊद की रिवायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुआ जो है जामे ठोस अल्फाज लेकिन ज़्यादा माने वालों से दुआ मांगनी चाहिए, मतलब थोड़े हो, ठोस हो, मजबूत हो और ज़्यादा उसका माना उसके साथ करना चाहिए। इसी तरह हाथ उठाए बगैर भी दुआ करना जायज़ है, लेकिन हाथ उठाना सुन्नत और अदब है। हाथ उठाए बगैर भी कर सकते हैं, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के अंदर तशहुद के अंदर दुआएं की, उसमें हाथ थोड़ी उठा सकता आदमी। नमाज के तशहुद में, नमाज की मुख्तलिफ अरकान में तो बगैर हाथ उठाए के, तो बगैर हाथ उठाए के भी कर सकते हैं, हाथ उठा के भी कर सकते हैं। इसी तरह जो है दुआ सुनने वाले के लिए आखिर में आमीन कहना चाहिए। जो दुआ सुने, जब कोई दुआ करे आप सुन रहे तो आमीन कहना चाहिए, इसलिए कि आमीन कहना ये जो है अल्लाह कबूल करके माने में है। सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने फरमाया जब बंदा अल्लाह से दुआ करता है तो फरिश्ते आमीन कहते हैं, उसके लिए वो दुआ करके आमीन कहते हैं। तो पता चला फरिश्ते दुआ पर आमीन कहते हैं, मतलब हम लोग भी जब दुआ कोई करे तो आमीन कहना चाहिए उसके ऊपर, लेकिन दुआ गुनाह की ना हो और खते ताल्लुक़ की ना हो। ये दो दुआओं पर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों दुआएं मांगना गलत भी, अल्लाह कबूल भी नहीं करता कि गुनाह की कोई दुआ या खते ताल्लुक़। ऐसा कोई दुआ करा अल्लाह लड़की को लेकर भागना आसान कर दे, बहुत से लोग करते हैं ना ऐसी दुआएं, होते हैं ना ऐसी दुआएं। तो बहरहाल नौजवान इसलिए बोल रहा हूँ, तो ये दुआएं नहीं कबूल होती कि तो गुनाह की है ना। आप ऐसी दुआ अल्लाह से करते हैं अल्लाह मेरे को शराब की नेमत अता फरमा, है ना, मेरे लिए जुआ चरस गांजा ये सब आसान कर, मेरे क्लब को जो सट्टे का है उसको खूब चला, है ना, लोगों को खूब बीमार कर ताकि मेरे दवाखाने में आए। गुनाह की है ना भाई, बीमार लोग होते रहेंगे, दवाखाने आते रहेंगे, अलग चीज़ है, आप दुआ नहीं कर सकते, इसकी गुनाह है ना। एक गलत चीज़ की दुआ कर रहे हैं आप, समझ रहे। जैसे पंक्चर की किसी ने दुकानदार तो आप क्या दुआ करें अल्लाह खूब पंक्चर हो, गाड़ियाँ इस शहर में मेरे पास आए। पंक्चर तो फितरी चीज़ें होंगी, आप दुआ नहीं, आप ये करेंगे अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत दे। अब वो कैसी होंगी वो एक अलग चीज़ है, आप बात समझ रहे। ये दुआ होनी चाहिए, तो गुनाह की दुआ नहीं होनी चाहिए। इसी तरह मामूली से मामूली चीज़ भी अल्लाह से मांगना चाहिए, मामूली बहुत मामूली चीज़ है अल्लाह से मांगिए। हम लोग समझते नहीं बड़े मसलों में अल्लाह को लाना चाहिए, मामूली मसले में ना को क्या को अल्लाह को जो खामखा लाने का नहीं, हर मसले में अपने रब से ताल्लुक़ जोड़िए अपना। और मामूली दुआ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए क्या फरमाया, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते आपने फरमाया और कहा तुम में से हर एक अपनी ज़रूरत अल्लाह से मांगे, हत्ता के जूते का तस्मा लेस भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगे, अल्लाह नहीं लेस चाहिए। और अगर नमक की कमी हो तो अल्लाह से मांगे, अल्लाह नमक चाहिए मुझे। उसके बाद कोशिश, मैंने पहले बयान कर दिया, कोशिश के साथ ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि तस्मा लेने जाए, कोशिश करे माल कमा के खरीदे, नमक के लिए बाहर निकले मांगे या फिर खरीदने जाए, कोशिश के साथ, लेकिन दुआ पहले। कोई मुश्किल कोई मुसीबत, अगर किसी ने किया अरे गाड़ी पंक्चर हो गई, अल्लाह मेरी मदद करे इस मामले में, गाड़ी पंक्चर हो गई मेरी, कोई भी छोटी से छोटी, लेस तो कितनी छोटी चीज़ है ना, कोई भी मुसीबत हो अल्लाह से फ़ौरन दुआ, उसके बाद कोशिशें अपनी जारी रखें। इसी तरह दुआ करते वक्त अपना रुख क़िबले तरफ रखना, ये भी सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर का जो मैंने वाक़या रखा था, आप क़िबले रुख हुए, ये मुस्लिम की रिवायत है। और दुआ की जिसके अल्फाज सही मुस्लिम की रिवायत के यूँ हैं, उमर इब्न ख़त्ताब कहते हैं जंग बदर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का पर एक नज़र डाली उन पर, जब खड़े हो गए थे आमने सामने, तो वो 1000 की तादाद थे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा की तादाद 319 थी। फिर फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबले रुख तरफ किया और अपने हाथ अल्लाह के हुज़ूर फैलाए और पुकार कर दुआ करने लगी, पुकार कर दुआ किया आपने, ठीक है। तो ये दुआ के अदब थे।